हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 2 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ भारतीय कला महोत्सव इनॉग्रेटेड। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, भोपाल, सिकंदराबाद या फिर कोच्चि। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन किया गया सिकंदराबाद में। आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द भारतीय कला महोत्सव ऑन 28th of September 2024 in Secunderabad, Telangana, focusing on northeastern states. So the festival runs from 29th of September to 6th of October 2024, showcasing the art, culture, craft, and culinary diversity of Northeast. So over 300 artists and artisans from Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Tripura are participating. And the event promotes the region's contribution to India's cultural heritage, fostering social harmony and inclusive development. And it is organized by the Ministry for Development of the Northeastern Region and the Ministry of Culture. तो आप ध्यान रखेंगे, भारतीय कला महोत्सव का जो पहला संस्करण है ये आयोजित किया जा रहा है सिकंदराबाद में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेडल इन द मेंस 500 मीटर रेस एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इन जापान। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, जापान में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है। आपके ऑप्शंस हैं गुलवीर सिंह, अविनाश सावले, परमजीत सिंह या फिर मुरली गविद। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 500 मीटर रेस में जो गोल्ड मेडल जीता है वो जीता है गुलवीर सिंह ने। आप देख सकते हैं, Gulveer Singh, a 26-year-old Indian athlete, achieved a significant milestone by winning the gold medal in men's 5,000 meters race at World Athletics Continental Tour in Japan. So he set a new national record with a time of 13 minutes and 11.82 seconds, surpassing his own previous record of 13 minutes and 18.92 seconds established earlier this year. And the previous record was held by fellow Indian athlete Avinash Sable. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, who has been awarded the prestigious 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में प्रतिष्ठित 2024 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं रुई किसियांग झांग, आदि नारायण दोडी, रीता सिन्हा या फिर एलेक्जेंडर डन। आपको बताना है कि रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये दिया गया है एलेक्जेंडर डन को। आप यहां देख सकते हैं, एलेक्जेंडर डन won the 2024 Shastra Ramanujan Prize, and this prize was instituted in 2005 by the Shastra University in Tamil Nadu. And it is awarded annually on Ramanujan's birth anniversary, December 22, to mathematicians under 32 of age. So the age limit honors Ramanujan's achievements during his short life, and the award includes a citation and a cash prize of $10,000. The prize has gained international recognition with past recipients including Manjul Bhargav and Akshay Venkatesh. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which state election commission has successfully carried out a paperless voting process for the first time in India during its Panchayat by-election in September 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य चुनाव आयोग ने सितंबर 2024 में अपने पंचायत उपचुनाव के दौरान भारत में पहली बार कागज रहित मतदान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है? आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये किया है मध्य प्रदेश ने। आप देख सकते हैं Madhya Pradesh State Election Commission conducted a paperless voting process for the first time in India, and it was implemented as a pilot project during a Panchayat by-election in Ratua Ratanpur village of Birashia Tehsil in Bhopal for the post of Sarpanch and recorded 84% turnout. So the process aims to computerize the manual parts of the voting process that were previously done on paper. And the new system uses thumb impressions and electronic signatures for voter identification, ensuring authenticity and eliminating proxy voting. Next question की ओर। Which of the following global initiatives is led by the United Nations Environment Program to combat marine plastic pollution? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक पहल की अगुवाई की जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक इनिशिएटिव्स, ओशन प्लास्टिक्स चार्टर, ओशन प्लास्टिक पॉल्यूशन कोलिजन या फिर क्लीन सीज कैंपेन। आपको बताना है कि समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए जो यूएनईपी की पहल है उसका नाम क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इस कैंपेन का नाम है क्लीन सीज कैंपेन। आप देख सकते हैं द क्लीन सीज कैंपेन इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द यूएनईपी टू टैकल मरीन प्लास्टिक pollution, and this campaign focuses on raising awareness, mobilizing action and implementing solutions to reduce plastic litter in oceans and seas worldwide. So it emphasizes the importance of addressing the root cause of marine pollution and engage stakeholders from governments, industries and civil society. So UNEP की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, एंड दिस institution is responsible for coordinating responses to environmental issues within the United Nations system. और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1972 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज फर्स्ट टील कार्बन स्टडी वाज कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये स्टडी किया गया है केवलादेव नेशनल पार्क में, जो कि राजस्थान में स्थित है। आप देख सकते हैं द फर्स्ट टील कार्बन स्टडी इन इंडिया was conducted at Keoladev National Park in Rajasthan, and the study aims to understand the potential of freshwater wetlands in addressing climate adaptation and resilience, highlighting the importance of such ecosystems in regulating greenhouse gases and mitigating climate change. सो टील कार्बन की बात करें तो टील कार्बन रिफर्स टू कार्बन स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स इंक्लूडिंग कार्बन सिक्वेस्टर्ड इन वेजिटेशन, माइक्रोबियल बायोमास एंड ऑर्गेनिक मैटर. And this concept focuses on the role of freshwater wetlands in mitigating climate change by regulating greenhouse gases.
सो केवलादेव नेशनल पार्क की बात करें तो आपने देखा कि ये राजस्थान में स्थित है एंड दिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर होस्टिंग द रेयर एंड थ्रेटेंड साइबेरियन क्रेन which migrates from the northern hemisphere to breed in the park, and the park is a crucial bird sanctuary and a key stopover for many migratory bird species. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is not one of the major themes of India's National Quantum Mission? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का मुख्य विषय नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी या फिर क्वांटम ब्लॉकचेन सिस्टम्स। आपको बताना है जो भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है उनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक विषय है जो शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसमें ब्लॉकचेन सिस्टम शामिल नहीं है। आप देख सकते हैं द नेशनल क्वांटम मिशन फोकसेस ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम sensing and metrology and quantum materials and devices. So there is no mention of quantum blockchain system as one of the major themes. So quantum computing की बात करें तो it uses quantum bits that can be both 0 and 1 at the same time, allowing for multiple calculations to be performed simultaneously, making quantum computing exponentially faster than traditional computing for certain types of problems. So National Quantum Mission की बात करें तो it aims to establish 4 thematic hubs at research institutes and research and development significance centers, जो कि 4 जो थीम है नेशनल क्वांटम मिशन के उन पर बेस्ड होंगे। एंड इंडिया विल बी अमंग द टॉप 6 लीडिंग नेशंस जिनमें शामिल हैं यूएस, कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्वांटम टेक्नोलॉजीज। तो ये जो क्वांटम मिशन है ये प्लान किया गया है 2023 से 2031 तक के लिए। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।